Students and dear friends, hope you are well and safe at your home. So, today we will discuss about most important interview questions for mechanical engineering students and mostly asked in different multinational companies as well as national companies. So, they are most important for all of you. सो आज हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स लैंग्वेज यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, क्योंकि कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास कि आप इंग्लिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज कर रहे हैं सर। तो आज हम हिंदी और इंग्लिश मिक्स करेंगे यूज। तो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्वेश्चंस, पूल ऑफ क्वेश्चंस। सो first question is thermodynamic cycles. So you know that many times interviewer ask about the thermodynamic cycles, and every students fear about these cycles because they don't understand well in their class. So ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। थर्मोडायनेमिक साइकिल्स जो है, अगर हम इनके बेसिक्स समझेंगे तो ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, so basically thermodynamic cycles, there are two types of cycles. Okay, one is power cycle and second one is heat pump cycle. So thermodynamic cycle are of two types: power cycle and heat pump cycle. So power cycle convert heat into mechanical work, whereas heat pump transfer heat from low to high temperature, low temperature to high temperature. That means pumping of heat from low temperature to high temperature is heat pump cycle. Okay, by using mechanical work. Then next, types of processes in thermodynamic cycles. So there are many processes used in thermodynamic cycles, so we afraid of explaining these words, but they are very simple. You know that isothermal, isobaric, isochoric, isentropic, isenthalpic, polytropic and reversible. So these are the terms used in thermodynamic cycles. So students, isothermal process means in that process the temperature is constant. So isothermal process में होता क्या है, temperature constant होता है, and one more process that is adiabatic process. और adiabatic process में हमारा क्या होता है, no energy transfer, that means energy is not transmitted. Okay, that is adiabatic process. Okay, next is isobaric. In that process pressure is constant, bar, that means bar. Isobaric means bar, हम प्रेशर की बात करें, प्रेशर कांस्टेंट है. Isochoric means volume constant and isentropic means entropy constant. So entropy, volume, pressure, the word isobaric, isochoric and isentropic also explain about these words, volume, entropy and the pressure. Okay, because we measure pressure in bar, and a choric word related to volume, and tropic, the entropy is also related to tropic word. So similarly isenthalpic is also related to enthalpy. So process proceed without any change in enthalpy, that is known as isenthalpic process. Next is polytropic process. It obeys the relation PV की power n is equal to C. So it obeys this relation. And next is reversible process. And what is reversible process? The process where entropy production is zero. Entropy production is zero. So entropy is denoted by what? S is equal to 0. So these terms are most important for thermodynamic cycles. We can say that Rankine cycle, Carnot cycle, Otto cycle, diesel cycles, these are the thermodynamic cycles. Okay. So students, this is our first question. What is the difference between Otto cycle and diesel cycles? Many times the interviewer ask about the Otto cycle और diesel cycle. So बहुत बार आप जब भी जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, आपसे पूछा जाएगा ऑटो साइकिल क्या होती है, डीजल साइकिल क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो बहुत सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हो इन चीज़ों को. जो भी साइकिल है हमारे, उनके डायग्राम्स पीवी डायग्राम्स होते हैं, टीएस डायग्राम्स होते हैं. वो भी बनाने हमारे इजी है. अगर हमारे को प्रोसेस का पता है तो हम इजीली बना सकते हैं उन चीज़ों को. सो स्टूडेंट्स, ऑटो साइकिल यूज्ड फॉर पेट्रोल engines and spark ignition engines, and
heat addition take place at constant volume. So in Otto cycle heat addition take place at constant volume and higher thermal efficiency. So Otto cycle की thermal efficiency higher होती है डीजल इंजन से. सिमिलरली डीजल साइकिल में आप डीजल इंजन्स में यूज करते हैं और कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन्स में यूज करते हैं. ओके, हीट एडिशन इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे होती है और लो थर्मल एफिशिएंसी है. सो इन द बिलो in the given presentation I also show you the diagrams. So in the first there is a ideal diesel cycle and in the second diagram there is a ideal Otto cycle. So process 1 to 2 show you the isentropic compression. Okay, so isentropic compression 1 to 2, then 2 to 3 showing constant pressure combustion and isentropic expansion and constant volume heat rejection. So you know that what is isentropic is a constant entropy process. So isentropic compression means we compress the fluid and entropy remains constant. Similarly, constant pressure means pressure remains constant. Okay, and compression means compressing the fluid and expansion means expanding that. That means lower the temperature and pressure. That is expansion. And constant volume heat rejection, heat is rejected from the system. Similarly, Otto cycle showing 1 to 2 isentropic compression, constant volume combustion, isentropic expansion and constant volume heat rejection. So these diagrams are simple and the colors of the blue color showing 1 to 2 process, 2 to 3 process, red line showing. So and the 3 to 4 process is showing by the other color and 4 to 1 is showing by violet color. So students, you may understand about the difference between Otto cycle and diesel cycle. Question number second, what is the refrigeration cycle? And refrigeration cycle is also known as thermodynamic heat pump cycle. So basically जो आपकी रेफ्रिजरेशन साइकिल और थर्मोडायनेमिक हीट पंप साइकिल है उसी के प्रिंसिपल के बेस पे आपका जो घर में रखा रेफ्रिजरेटर है वो काम करता है, फ्रिज काम करता है आपका. ठीक है, जो फ्रीजर होते हैं हमारे शॉप पे होते हैं वो सारे आपके रेफ्रिजरेशन साइकिल और थर्मोडायनेमिक हीट पंप साइकिल के ऊपर ही काम करते हैं. सो ये काम कैसे करता है आपको पता है. हमारे फ्रिज में क्या क्या होता है, कुछ टर्म्स आप जानते भी हैं. कंप्रेसर होता है, इवेपोरेटर होता है, कंडेंसर होता है. तो ये सारी चीज़ें हमारी साइकिल में आती हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल में आती हैं, हीट पंप साइकिल में और रेफ्रिजरेशन साइकिल में. सो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, आप अच्छे से समझ पाएंगे. सो इसमें होता क्या है बेसिकली रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर क्या करता है, हीट को रिमूव कर देता है और आपके जो ऑब्जेक्ट है या थिंग्स है उसको ठंडा कर देता है, कूल कर देता है. सो यही. और अगर आप हीट पंप की बात करें तो वो क्या करता है, कूलिंग को बाहर निकाल देता है और हीट अप कर देता है. ठीक है, सो ओनली द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट दैट ट्रांसफर हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. सो बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक हीट पंप साइकिल होता है क्या करता है, वो हीट को ट्रांसफर करता है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे. इट स्टार्ट और एंड विद द कंप्रेसर. और ये जो प्रोसेस है थर्मोडायनेमिक साइकिल, ये स्टार्ट भी कंप्रेसर से होती है और ख़त्म भी कंप्रेसर पे होती है. द रेफ्रिजरेंट फ्लो इनटू द कंप्रेसर. और एक रेफ्रिजरेंट होती है, गैस होती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, R12 होती है. ऐसे ही हमारी बहुत सारी रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जो आपके यूज होते हैं और वो फ्लो करता है रेफ्रिजरेंट एज ए गैस इन रेफ्रिजरेटर, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व्स. ओके, सो फ्लो इनटू कंप्रेसर वेयर इट इज कंप्रेस्ड. सो कंप्रेसर क्या करता है, कंप्रेस करता है और उसके प्रेशर को बढ़ाता है. कंप्रेस कर देगा और प्रेशर बढ़ जाएगा आपका. सो रेफ्रिजरेंट इज देन पुश टू कंडेंसर. जब कंप्रेसर उसको कंप्रेस कर देगा तो वो किसके पास भेज देगा, कंडेंसर के पास भेज देगा. और कंडेंसर उस प्रेशराइज रेफ्रिजरेंट को कूल करेगा, उसके टेम्परेचर को डाउन करेगा बाय कन्वर्टिंग इट इन लिक्विड. और वो उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा. कंडेंसर जो है उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा. And after that in expansion valve it is reduce the pressure and temperature. and the expansion valve, जो expansion valve है आपकी, वो भी आपका क्या करेगी, उसके प्रेशर को और टेम्परेचर को उस लिक्विड के कम कर देगी और उसको और कूल कर देगी और वो उसको आगे इवेपोरेटर में भेज देगी. और आप जानते हैं इवेपोरेटर क्या होता है, सबसे ठंडा पार्ट होता है रेफ्रिजरेटर का या फ्रिज का. सबसे ठंडा पार्ट क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है. और ये हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, जो भी हीट बची है उस हीट को ऑब्जर्व कर लेगा और कूलिंग प्रोवाइड करेगा आपको. ओके, ये क्या काम करेगा, एज ए एक्सचेंज मीडियम काम करेगा. ये हीट को रिमूव करेगा और कूलिंग कर देगा. ओके, ठीक है.
So it become and enter into compressor. So it converts liquid from फॉर्म इनटू वेपर और गैस, और ये क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। इवेपोरेटर आपका लिक्विड फॉर्म को वेपर फॉर्म और गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आगे हम इसका डायग्राम दिखाएंगे आपको। सो ये आपका डायग्राम है। आपको पता है कि जो आपकी ये प्रोसेस है कंप्रेसर से शुरू होती है, कंप्रेसर पे ख़त्म होती है, और कंप्रेसर का काम कंप्रेस करना है। उसके बाद इवेपोरेट कंप्रेसर के बाद आपको पता है ये किसको देगा, कंडेंसर को। कंडेंसर के बाद ये देगा आपका एक्सपेंशन वाल्व को, और एक्सपेंशन वाल्व से इवेपोरेटर, और इवेपोरेटर से वापस जो आपका जो कंप्रेसर में चला जाएगा। सो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज रैंकाइन साइकिल। सो रैंकाइन साइकिल भी आपसे कई बार पूछी जाएगी इंटरव्यू में, लेकिन कई बार क्या होता है जब ये साइकिल्स की बात आती है, इंटरव्यूअर साइकिल्स के बारे में पूछता है, तो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं होता इन साइकिल्स के बारे में, ओके। और उसको एकदम से डर लगता है साइकिल्स का। कभी भी आपकी एग्ज़ाम में भी आती हैं या आपके इंटरव्यू में पूछी जाती हैं साइकिल्स, तो इनसे डरता है बहुत ज़्यादा। सो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनके साथ में इनको अच्छे से स्टडी कर लोगे और तो आप इजीली बता पाओगे ये सारी चीज़ें एग्जामिनर को, ठीक है। सो उसको जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो ज़्यादा डिटेल्स नहीं जानना चाहता आपसे, वो नॉलेज चेक करता है आपका स्टार्टिंग में। तो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से इनको रीड करके जाओगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। सो रैंकाइन साइकिल बेसिकली होती क्या है, इट इज़ यूज टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टीम टर्बाइंस। सो ये आपकी परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज होती है स्टीम टर्बाइंस की, और रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन्स की ये परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करती है, ओके। सो इट इज़ एन आइडियलाइज्ड थर्मोडाइनमिक साइकिल। ये एक आइडियल साइकिल होती है, थर्मोडाइनमिक साइकिल बोलते हैं इसको, आइडियल थर्मोडाइनमिक साइकिल हीट इंजन के लिए, और ये कन्वर्ट करती है हीट को मैकेनिकल वर्क में, ओके। सो यू नो दैट कि आपके स्टीम टर्बाइंस कैसे काम करती हैं। आपको पता है कि आप बॉयलर्स में वाटर लेते हो, वाटर को आप बॉयल करते हो हीट अप करके, और उसकी स्टीम बनाते हो, और स्टीम को आप टर्बाइन में देते हो, और टर्बाइन आपकी चलती हैं और वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। तो स्टीम आपकी हीट आपकी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो रही है। बेसिकली आपने फ्यूल से क्या किया, बॉयलर को गर्म किया, आपका वाटर जो स्टीम बन गया, और स्टीम से आपकी टर्बाइन चल गई। तो इस प्रोसेस को ही आप बोलते हो कन्वर्टिंग हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। सो ये आपकी पावर प्लांट में यूज होती है ज़्यादातर। ये जो आपकी साइकिल है इट इज़ यूज इन पावर प्लांट, एक्स कोल फायर, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ओके। और ये आपकी बेसिकली दो तरह की प्रोसेस होती है इसमें रैंकाइन साइकिल में, टू आइसोथर्मल और टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। सो यू नो दैट आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है हमारा, और आइसेंट्रोपिक में आपका एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, और नो चेंज इन एंट्रोपी, ओके। सो टीएस डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। टीएस डायग्राम में होता क्या है, बेसिकली 1 to 2 प्रोसेस में आपका क्या होता है, वर्किंग फ्लूइड पंप किया जाता है लो टू हाई प्रेशर पे, ओके। पंप करेंगे हम 2 से 3 प्रोसेस में आपका हाई प्रेशर लिक्विड एंटर करेगा बॉयलर के अंदर। हाई प्रेशर का जो लिक्विड है वो बॉयलर में जाएगा, और उसको हम बॉयलर में हीट करेंगे बेसिकली, ओके, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। और 3 से 4 में हम उसको सेचुरेटेड फॉर्म में लेके आएंगे, ड्राई सेचुरेटेड वेपर बना देंगे हम, उसके वेपर्स बन जाएंगे। और उसके बाद आपको पता है टर्बाइंस में जाएगा, आपके वेपर जो स्टीम है वो टर्बाइंस को चलाएगी आपकी। और उसके बाद क्या है आपका वापस द वेट वेपर देन एंटर्स ए कंडेंसर, और उसके बाद जब टर्बाइन चला दिया आपने, वापस वो जो वेट वेपर रह जाएंगे वो कंडेंसर में जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, और कांस्टेंट प्रेशर पे वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। आगे आपको टीएस डायग्राम मैंने शो कर रखा है। सो दिस इज़ द टीएस डायग्राम फॉर द रैंकाइन साइकिल। So I also show you the process by the diagram, that is boiler. So pumping of the water to boiler, then boiler convert it in steam, and steam runs the turbine, and after running the turbine the gases or vapor becomes in liquid through the condenser, and then again give to the boiler by pumping. So this is our TS diagram. T is for temperature and S is for entropy. And from here 0 to 1 showing pumping, 1 to 2 showing boiler work, and after boiling then it runs turbines, 2 to 3, and 3 to 1 vapas condenser work, okay. So this is the whole process, you may understand. So next is what is Carnot cycle. So you hear about Carnot cycle many times. So Carnot cycle is also important
for interviewers. It is ideal cycle for heat engines. This cycle is ideal for heat engines. You know that what are heat engines, okay? So basically external combustion engines, or we can say that internal combustion engines are heat engines. These includes turbines, steam turbines, also includes SI engines, CI engines. These are heat engines. So which give highest efficiency. So this cycle or the heat engines gives highest efficiency between given temperature difference. It is a theoretical cycle. So the Carnot cycle is a theoretical cycle. It is not practical cycle. And actually no engine work on it. So कोई भी इंजन जो है आपका कार्नोट साइकिल पे काम नहीं करता है, क्योंकि ये एक आइडियल साइकिल है. इट हैज 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस. सो इसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होती हैं और 2 आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस होती हैं. So you know that what is isothermal, the temperature is constant, and what is adiabatic process, there is no heat change, okay, no, there is no heat transfer, that is adiabatic process. So students, I think you may understand about the Carnot cycle. Our next one is Brayton cycle. So it describes the working of constant pressure heat engine. ये आपका constant pressure heat engine की जो working है उसको describe करती है. और इट यूजेज पिस्टन कंप्रेसर एंड पिस्टन एक्सपेंडर. सो बेसिकली जो आपकी ये साइकिल है वो पिस्टन कंप्रेसर और पिस्टन एक्सपेंडर यूज करती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज स्टर्लिंग साइकिल. सो स्टर्लिंग साइकिल इज ए हीट इंजन. बेसिकली जो आपका सबसे पहला इंजन बना था आपका स्टर्लिंग इंजन था वो, और उसी के बेसिस पे ये काम करती है स्टर्लिंग साइकिल जो है हमारी. और ये आपका क्या है, दैट इज ऑपरेटेड बाय साइक्लिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन. सो ये है कि आपकी साइकिल में ऑपरेट होता है जैसे कंप्रेशन देन एक्सपेंशन ऑफ एयर एंड अदर गैसेस एट अ डिफरेंट टेम्परेचर सच दैट देयर इज नेट कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी टू मैकेनिकल वर्क. ओके, इट इज बेसिकली वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल दैट हीट इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल वर्क. ओके, so next is showing Carnot engine, and the diagram is showing pressure and volume. Yeah, that means PV diagram, and there is also showing temperature entropy diagram in the figure. So students, there is a 2 isothermal process, that is isothermal compression or isothermal expansion, and there is 2 adiabatic process, that is adiabatic compression and adiabatic expansion. Similarly, in TH diagram, a rectangular shape is formed in the Carnot engine or Carnot cycle. So it's showing you 2 to 3. That means Q showing heat, and heat input and heat output is showing by these 2 red arrows. Okay, so this is explanation of the Carnot cycle, or it is very simple, or you know that it is a ideal cycle. So question number 6, mostly and many times thermodynamic laws are also asked during the interview. So these laws are most important, okay, most important for the students, or many times they are asked, because you know that ये आपके जो thermodynamics law हैं ये आपके 11th 12th से स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारे इंजीनियरिंग में भी पढ़ाए जाते हैं. थर्मोडायनेमिक्स में बार बार पूछे भी जाते हैं. सो यू नो दैट कि हमारे जो थर्मोडायनेमिक के लॉ होते हैं वो 3 ही होते हैं, और एक और आपका जीरोथ लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स के लिए. सो यू नो दैट व्हाट इज जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ डिफाइंस थर्मल इक्विलिब्रियम. ओके, इट डिफाइंस थर्मल इक्विलिब्रियम एंड फॉर्म ए बेसिक फॉर द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर. सो इफ 2 सिस्टम आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, अगर आपके 2 सिस्टम एक दूसरे के साथ में इक्विलिब्रियम में हैं, that means if 2 system are each in thermal equilibrium with the third system. अगर आपके 2 सिस्टम जो हैं थर्ड सिस्टम के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं, सो वो क्या होंगे, वो एक दूसरे के साथ में भी इक्विलिब्रियम में होंगे. दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो. अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, कोई ए और बी है, वो सी के साथ में, ए और बी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी एक दूसरे के साथ में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे. दैट इज जीरोथ लॉ. So next is first law of thermodynamics. You know that what is the first law of thermodynamics. When energy pass, a work done. Okay, energy pass करेंगे तो work होगा हमारा as a heat. Okay, or with matter into or out of the system. The system internal energy change according with the law of conservation of energy. Okay, so
you know that the first kind, that means the perpetual motion machine of first kind are impossible. That is the first law. Or what is the perpetual motion machine of first kind? Machine that produce work with no energy. So ये आपको पता है कि ऐसी मशीन बनानी बहुत इम्पॉसिबल है जो अपने आप काम करे, प्रोड्यूस वर्क, जो एनर्जी ले ही ना और अपने आप काम करे। एनर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, एनर्जी आपको लेनी पड़ेगी किसी फॉर्म में भी लो आप, तभी काम करेगी कोई भी मशीन जो है। सो ये आपका फर्स्ट लॉ है। सेकेंड लॉ है आपका, इन ए natural thermodynamic process the sum of entropies of the interacting thermodynamic system increase equivalently. Perpetual motion machine of second kind are impossible. So in the first law, perpetual motion machine of first kind are impossible. That means machine that produce work with no energy is perpetual first motion machine first kind. And in perpetual motion machine second kind, machine that spontaneously convert thermal energy into work are impossible. You know that complete energy don't use, there is some wastage of energy. Okay, so complete conversion of energy into complete work, that is impossible. That is the perpetual motion machine of second kind. And the third law, the entropy of system approaches a constant value as the temperature approaches absolute zero. With the expansion or with the exception of non-crystalline solids, the entropy of system at absolute zero is typically close to zero. So ये आपका एंट्रोपी की सिचुएशन को बताता है थर्ड लॉ जो है, द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मीन्स एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज टिपिकली क्लोज टू जीरो। सो एंट्रोपी भी क्या होती है आपकी, जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। That is known as the thermodynamics third law. So first law describe about the perpetual motion machine of first kind, second law describe about the perpetual motion machine of second kind, and third law explain about the entropy. Okay, the entropy of the system at absolute zero is close to zero. That is the third law. So I think you may understand these four laws of thermodynamics, or these laws are also known as laws of conservation of energy. These laws are also known as laws of conservation of energy. Next is Newton's law. So these laws are also popular or many times asked by the class teacher or many times asked by the interviewer. So these are the basics, and you must read these laws before going to the interview. आपको किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले ये लॉ आपको पढ़ने चाहिए एक बार। So Newton's law of motion, these are also known as Newton law of motions. These are of three types. Okay, are three physical laws that together laid the foundation of classical mechanics. They describe the relation between body. Okay, they describe the relation between body and force acting upon it. So they explain the relation between body and force acting on it, and its motion in response to the force. You know that when we apply force on an object, then object move from one place to other place. Okay, अगर हम किसी चीज़ पे बल लगाएंगे तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा, वो जो चीज़ होगी आपकी, एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाएगी, उसका इम्पैक्ट होगा कुछ। ठीक है, तो उसी का इम्पैक्ट को आपके न्यूटन लॉ बताते हैं। सो फर्स्ट लॉ of Newton's law of motion is, an object either remains at rest or continue to move at a constant velocity unless acted upon by a force. So that means what? First law ये कहता है कि अगर आप जब तक किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में ही रहेगा, और कोई ऑब्जेक्ट आपका अगर चल रहा है किसी मोशन में है, जब तक आप उस पर फोर्स लगा के उसको रोकोगे नहीं तो वो ऑब्जेक्ट जो आपका मूव करता रहेगा, वो घूमता ही रहेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई आपके पास टेबल रखी है, बुक रखी है, वो बुक आपकी रखी है आपकी टेबल पे, जब तक आप उसको उठाओगे नहीं या उसको पुल नहीं करोगे या पुश नहीं करोगे, वो हिलेगी नहीं वहाँ से। और ऐसे ही आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो मान लो आपने कोई पेन है उसको रोटेट करवा दिया है, और वो पेन जो है रोटेट करता रहेगा जब तक कि आप उसको रोकोगे नहीं। तो ये आपका फर्स्ट लॉ कहता है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ क्या है आपका? सेकेंड लॉ आपको रिलेशन बताता है फोर्स का। ओके, द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये आपको बताता है कि जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्स लगी है उनका वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस वो आपका इक्वल होता है उसके मास ऑफ द ऑब्जेक्ट के, और उसको मल्टीप्लाई कर दो एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट के, आपकी फोर्स इक्वल होती है। दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दैट इज सेकंड लॉ। एंड थर्ड लॉ एक्सप्लेन अबाउट द when one body exert a force on second body, the second body simultaneously exert a force equal in magnitude and opposite in direction on the first body. That means every action there is equal and opposite reaction. जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हो तो वो बॉडी जो जिसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती है उसके ऊपर। दैट इज नोन एज द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। So every action there is equal and opposite reaction. Okay. So students, ये हमारे कुछ important questions थे जो आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनकी तैयारी करोगे। अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे और आप इनकी अच्छी से तैयारी करके जाइएगा जब भी जाइएगा, और मैं आगे कुछ कोशिश करूँगा कि छोटे क्वेश्चन लेके आए आपको अच्छे से तैयारी हो पाए इंटरव्यू के लिए। थैंक यू। मीट यू इन ए न्यू सेशन with new questions. Till then, bye. Keep learning, keep watching, keep enhancing your knowledge.